Hello, good morning students. How are you? So today we are going to study infectious diseases. Okay. So what is meant by infectious diseases? So an infectious diseases, also known as the transmissible diseases, means it can transmit from one person to another. Okay. Or we can say it is a communicable disease. Okay. It is also known as communicable disease. Is an illness resulting from an infections. Okay. इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमको इलनेस आती है, मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं. ओके. सो कौन कौन सी बीमारी होती है इन्फेक्शन की वजह से और किसके कारण होती है, ये हम आज देखने वाले हैं. ओके. सो इन्फेक्शंस आर कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स. हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन भी बोलते हैं. ओके. पैथोजेंस कौन कौन से पैथोजेंस उसमें इंक्लूड होते हैं, which pathogens are responsible for the infectious diseases? So first is viruses, okay, second is bacteria, third is fungi and fourth is parasites. Okay. So parasites कौन कौन से, उसमें प्रोटोजोआ भी आते हैं. प्रोटोजोआ तो उसमें जैसे एंटामीबा हो गया, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है और उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन भी बोलते हैं. ओके. सो let's go to the history. Okay. So this disease is very dangerous disease and pandemic disease. Today we are going to face serious problems of corona disease. Okay. Coronavirus. Okay. Coronavirus, this virus spread all over the world. Okay. And today we are facing very serious problems. Okay. So let's study first infectious disease. So deaths of infectious disease increases day by day in the world or in our India. Okay. So it is very dangerous disease. Okay. So deaths due to infectious and parasitic diseases per million persons in 2012 was कितनी थी, पर मिलियन पर्सन के अनुसार अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए कितने डेथ्स होते हैं, कितनी डेथ हुई थी उस टाइम 2012 में 3,955 टू 6,812. ओके. तो इतनी सारी डेथ्स उस 2012 में हुई थी, किसके कारण, इन्फेक्शियस डिसीज के कारण हुई थी. ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पैंडेमिक और ग्लोबल एपिडेमिक. ओके. डिसीज. ओके. सो दिस इज द डिसीज दैट अफेक्ट पीपल ओवर एन एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एरिया. ओके. वर्ल्ड वाइड जितने भी एरियाज है सब रीजन को अफेक्ट किया था उस टाइम. ओके. और एग्जांपल देखते हैं हम प्लेग का, प्लेग ऑफ जस्टिनियन. ओके. प्लेग ऑफ जस्टिनियन, इट इज द it takes place in 541 to 542. So in this pandemic disease there were killed 50% to 60% of Europeans populations. कितनी, 50% to 60% पॉपुलेशन क्या हुई थी, उसमें डेथ हो गई थी. ओके. सो दैट्स वाई दिस डिसीज is a very dangerous disease. Okay. Nowadays we are facing problems of coronavirus. Okay. So coronavirus cases in the world, there are 1 crores 21,96,982 cases declared. Okay, in the world. Okay. And how many deaths are 5,52,781. Okay.
So this is the vast numbers, okay, and till now we are facing the serious problems of corona, okay, and how many active cases are there? So today 45,50,432 cases are active in the world, okay, and India, how many active cases are there? So 7,67,296 cases are there till now, okay, and how many deaths were takes place? So 21,129 deaths, okay, happens till now, okay. So that's why it is a very pandemic disease, okay. So this is also infectious disease. It is spread to person by the contamination, okay. So this is the very harmful or dangerous disease, okay. So let's study infectious disease. So what is meant by infectious disease? So disease spread through contaminated air, water, food और vectors, okay. जो ऐसी डिसीज जो किसके कारण फैलती है? एयर थ्रू वो फैलती है, वाटर के कारण भी फैलती है, फूड जो हम इंजेक्ट करते हैं उसके कारण भी फैलती है, और कुछ वेक्टर्स भी रहते हैं जिसको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए और क्या है एनिमल्स वगैरह, इनके माध्यम से भी ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, ओके, ट्रांसमिट होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज, ओके, और ट्रांसमिटेड डिसीज, ओके. सो let's take example of infectious disease. So first is tuberculosis, okay. So tuberculosis, contagious infections caused by bacteria that mainly affects the lungs but also can affect any other organs. lungs के ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करती है, ओके. और इसके अलावा और भी जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में उस पर भी वो अटैक करती है, ओके. सो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ऐसे जिस पे वो अटैक करती है? जैसे ये हो गया, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी वो अटैक करती है, हमारे बोन्स और स्पाइन पे भी अटैक करती है, हमारे स्प्लीन पे भी अटैक करती है, लिवर, स्प्लीन और ऐसे जैसे किडनी वगैरह इस पे भी अटैक करती है हमारे, ओके. तो जेनिटल ऑर्गन्स के भी ऑर्गन्स पर भी वो अटैक करती है. सो इट इज़ वेरी पैंडेमिक और डेंजरस डिसीज, ओके. सो कॉमन मोर देन 10 lakh cases per year in India, okay. How many cases were found in India? So more than 10 lakh cases per year, okay, per year found in India, okay. So treatment from medical professional advice. So इसकी कुछ ट्रीटमेंट भी दी हुई है, अभी बहुत सारे वैक्सीन इसके ऊपर अवेलेबल है, ओके. और उसके लिए क्या चाहिए रहता है? ऑप्शन रिक्वायर्स लैब टेस्ट और इमेजिंग, ओके. लैब टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ओके. सो दिस इज़ वेरी harmful disease, okay. So what is tuberculosis of lungs का tuberculosis कैसे होता है? So it is one such disease that infects thousands of people all over the globe, while resolutions of the disease is subject to extensive treatment over a long period of time, okay. So most people do not take the condition seriously until it is too late, okay. So this disease is caused by Mycobacterium tuberculosis. This is the pathogens responsible for the tuberculosis, okay. Mycobacterium tuberculosis bacteria, this is bacteria, okay, and its size and structure is like this, okay. You can see in the picture, okay. This is the microscopic structures of Mycobacterium tuberculosis bacteria, okay. So understood it?
So let's study. So what are the mode of infections of the disease? So first is splitting by patient. जब कोई आदमी अपने जो स्प्लिट है वो स्प्लिटिंग करता है, तब वो क्या होता है, उस स्प्लिटिंग के माध्यम से, स्पुटम के माध्यम से एक आदमी, वो एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉइस्चर रहते हैं, एयर मॉइस्चर में वो क्या हो जाते, फैल जाते हैं। और जो एयर मॉइस्चर में फैलने के बाद में क्या होता है, जो मॉइस्चर हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन जब करते हैं हम, तो रेस्पिरेशन करते वक्त वो हमारे बॉडी में एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में आया होगा कैसे फैलते हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर। ओके, सो स्प्लिटिंग बाय पेशेंट, जिस आदमी को वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उस आदमी ने अगर स्प्लिट किया, ओके, तो वो जो स्प्लिट में जो बैक्टीरियाज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट रहते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, और वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब वो किनके थ्रू, नोज़ या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं। ओके, और दूसरा कारण क्या है, थ्रू एयर, एयर के माध्यम से पहुँचते हैं। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। ओके, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, जब हम किसी टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और शेयरिंग करते हैं कुछ मटेरियल्स वगैरह, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, ये जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में एंट्री कर लेता है, और दिस इज़ द मोड ऑफ इन्फेक्शन। इस तरह हमारे बॉडी में वो ट्रांसमिट होता है। ओके, तो आगे देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स है उसके। सो अर्ली इन्फेक्शंस कॉजेज नो सिम्टम्स। ओके, अर्ली इन्फेक्शन, जब हम इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसकी शुरुआत है, तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे आपके बॉडी में। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, प्रोटेक्ट स्प्रेड, जो बैक्टीरिया का फैलाव है हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करती है। ओके, एंड इन मेनी केसेस इट रिमेन्स इनएक्टिव, और बहुत सारे ऐसे केसेस में क्या रहते हैं, वो इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं। ओके, दिस स्टेज इज रेफर टू एज लैटेंट टीबी, और उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट टीबी बोलते हैं। एंड शोज नो सिम्टम्स, और इसके हमको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। ओके, लेकिन टीबी है। ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, so early diagnosis and treatment is necessary to control the spread of the infection। इसके लिए हमको अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली, डायग्नोसिस किया हमने प्रॉपर तरीके से, और अर्ली ट्रीटमेंट अगर हमने की, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट उसका प्रकार आता है एक्टिव टीबी। ओके, पहला हमने देखा था लैटेंट टीबी, और नाउ it is active TB is a stage where immediate medications and care is required। जिसमें क्या होता है, जो immediate मतलब वो कैसे टीबी एक्टिव कंडीशन में है और इसको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमको अभी हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ओके, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम्स उतनी इनफ नहीं है। ओके, उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए। सो एक्टिव टीबी इज अ स्टेज वेयर इमीडिएट मेडिकेशंस एंड केयर इज रिक्वायर्ड। ओके, द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड्स, उसमें कौन से कॉमन सिम्टम्स आते हैं। सो पर्सिस्टेंस कफ, उसको हम क्रोनिक कफ बोलते हैं। क्रोनिक कफ जो
बहुत सारे हफ्तों से हमको खांसी आती है, ओके, विच लास्ट फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स। अगर 2 या 3 वीक्स से ज़्यादा हमें खांसी हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ओके। बाद में सेकंड कॉजेस क्या है, सेकंड सिम्टम्स क्या है उसका, कफ विथ ब्लड इन स्पुटम, ओके। जब हम खांसते हैं तो उसी टाइम हमारे जो स्प्लिट है उसमें क्या आता है, ब्लड भी आने लगता है, ओके। सो दिस इज द सेकंड सिम्टम्स। सो थर्ड सिम्टम्स इज फीवर फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स। 2 या 3 वीक्स से ज़्यादा अगर हमको फीवर है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये टीबी के सिम्टम्स हैं, ओके। देन नेक्स्ट सिम्टम्स इज सडन वेट लॉस। हमारा जो वेट है वो बहुत जल्दी लॉस होता है, ओके। और नेक्स्ट सिम्टम्स है नाइट स्वेट्स। हमको रात में भी ऐसे पसीना आने लगता है, ओके। पसीना हमारी बॉडी हो जाती है। और लास्ट सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती, ओके, भूख मर जाना, ओके। these are the all symptoms of TB, ओके। ये अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि अब हमको मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है और हमको केयर करने की भी बहुत ज़रूरत है, ओके। तो इमीडिएट एक्शन इज़ नीडेड इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट, सो अगर हमको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं फिर, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, ओके। सो डायग्नोसिस बिगिंस विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। हमको क्या करते हैं, हमारे पहले डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, किसका, ऑफ लिम्फ नोड्स फॉर स्वेलिंग एंड द साउंड्स ऑफ लंग्स। हम जो हमारे लिम्फ नोड्स है उसके एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और क्या करते हैं, साउंड्स ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स का साउंड कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज है डायरेक्ट लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, लंग्स के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं, तो उसका आवाज़ कुछ बदल जाता है। तो उस साउंड्स के माध्यम से भी डॉक्टर पता लगा सकते हैं, ओके। देन स्किन टेस्ट इज कैरिड आउट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमारे स्किन के ऊपर भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ओके। आगे देखते हैं वो कैसे सिम्टम्स रहते हैं, ओके। सो दिस आर द डायग्नोसिस विच इज जो डॉक्टर ये करते हैं, ठीक है। बाद में क्या क्या करते हैं, सो कौन सी टेस्ट करते हैं वो। सो फर्स्ट टेस्ट इज ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ओके। सो क्या है ये, सो ट्यूबरक्यूलिन और टीबी एंटीजन, वो क्या है, एंटीजन है, इंजेक्टेड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो कैसी है, अच्छी है या कोई प्रॉब्लम्स है उसमें, वो क्या करती हैं, वो डिटरमाइन करती हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हमको पता चलता है। ये अगर हमको ये मालूम हो गया कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसी है, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर्स गिव्स डोजेस, ओके। देन नेक्स्ट टेस्ट इज अ स्पुटम कल्चर टेस्ट। क्या करते हैं, जो स्पुटम कल्चर टेस्ट, हमारा जो स्पुटम इज कल्चर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ अ स्पेशल स्टेन, ओके। जैसे अब कोरोना का जो पेशेंट है उसके जब हम क्या निकालते, सैंपल के तौर पर स्वैब निकालते हैं, ओके, स्वैब टेस्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि उसमें वायरस है या नहीं, ओके। वैसे ही स्पुटम कल्चर टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ओके। बाद में नेक्स्ट टेस्ट है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। कौन सी टेस्ट है, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, ओके। सो प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज द कॉज ऑफ टीबी, ओके। ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट। कुछ बहुत सारे टेस्ट का एक ग्रुप है जो ये टीबी डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है,
बाद में नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, सीटी स्कैन, आपको तो मालूम है सीटी स्कैन, ओके। सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट हेल्प्स कंफर्म पल्मोनरी टीबी, ओके। सो उसके माध्यम से भी हमको पता चलता है, ओके। सो these are the some diagnosis test, okay, let's follow. So these are the symptoms, we understood it. Now what are the preventions and treatments, okay, to cure TB? So what are the prevention and treatments? So BCG, okay, this is the vaccine, this is vaccine used by doctors to prevent TB, okay. So BCG vaccine. So उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है BCG का, आपको मालूम है? BCG का लॉन्ग फॉर्म बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन वैक्सीन, उसका जो नेम है, ओके। बाद में नेक्स्ट है उसका ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। सो और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं डॉक्टर्स? रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड, इथेम्बुटोल and streptomycin. These are the drugs used to cure TB, okay. So these are some drugs which are useful for the treatment of TB, okay. Next, so what is next disease? Hepatitis, okay. Again, hepatitis is another type of infectious disease, we called it as jaundice, okay. So it is a viral hepatitis including hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E also. These are the types of hepatitis, okay, disease. So each have different hepatitis symptoms and treatment. Each disease, each type having different types of symptoms and different treatments are also available, okay, to cure such type of disease, okay. Some causes of hepatitis include recreational drugs and prescriptional medications, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हमको मेडिसिन, वो भी जरूरी रहती है, ओके। सो और क्या जरूरी है इसमें? लेबोरेटरी टेस्ट कैन डिटरमाइन हेपेटाइटिस टाइप, और हमको लेबोरेटरी टेस्ट भी करना ज़रूरी है कि उसमें कौन सा हेपेटाइटिस, उसमें कौन सा प्रकार है, हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार है, ओके। हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस ए है या सी है या डी है या ई है। इच hepatitis having different types of symptoms and treatments. For that purpose, doctors send samples in the laboratory to detect which type of hepatitis is present, okay. So next, types of hepatitis. So हमने जो बताया अभी, there are 5 types of hepatitis. Most of the peoples are commonly affected by hepatitis A, B and C in the words, okay. And कौन से पैथोजन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसके लिए? वायरस, सिगेला, बैसिला, एंटामीबा एंड हिस्टोलिका, okay. These are the pathogens responsible for that disease, okay. So these are the structures of hepatitis A here, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E, okay. And these are the short form, HAV, HBV, okay. So understood it. Now mode of infections, कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी में? सो हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में? सो क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, हम जो जिस व्यक्ति को ये हुआ है हेपेटाइटिस, उस व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमको क्या होता है, वो बीमारी हो जाती है, ओके। जैसे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट,
ओके, चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह वगैरह। ओके, सो कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर्स, अगर हमने कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर्स वगैरह यूज़ किए, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स यूज़ किए, रॉ सेल्फिश यूज़ किए, तो हमको क्या होता है, ये डिसीज़ हो जाता है। ओके, देन ब्लड एक्सपोजर, ओके, इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज, ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ब्लड एक्सपोजर के वजह से भी हमको ये बीमारी हो जाती है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या हैं? सो जॉन्डिस, फेवर, फैटिक इन शॉर्ट पीरियड्स, हमको वीकनेस भी रहता है, फैटिक रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, हमारे पेट में भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एनोरेक्सिया होता है, येलो यूरिन आती है, वोमिटिंग एंड ग्रे स्टूल भी आता है। दिस आर द सिम्टम्स, ओके, एंड दिस आर द साइन। ओके, so you can see in the pictures. So hepatitis A sign of hepatitis A is like this, and symptoms of hepatitis C is like this. Okay, so if you suffer from such type of disease, then you must go for the medical. Okay, then what are the treatments for the for cure of hepatitis? So for treatment of hepatitis A, no specific treatment, dietary foods and long rest recommended and avoid alcohol. ये छोटी सी ट्रीटमेंट यूज़फुल है। क्या क्या कर, मतलब उसके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, अगर हमको हेपेटाइटिस ए अगर क्योर करना है तो उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमको प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है, फूड लेना ज़रूरी है, और रेस्ट की ज़रूरत है हमको, और अल्कोहल जो है, दारू वगैरह है, मद्यपान हमको नहीं करना है। ओके, बाद में हेपेटाइटिस बी के लिए हमको कौन सी ट्रीटमेंट यूज़फुल है? सो ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आफ्टर एक्सपोजर। सो हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शंस, ये इंजेक्शन हमको लेना जरूरी है विदिन 24 आवर्स ऑफ कमिंग इन कांटेक्ट विद द वायरस। उस वायरस के हम कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं, हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो हमको 24 आवर के बीच में ही ग्लोबुलिन इंजेक्शन, जो इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शन है, वो ले लेना है। ओके, सो इट मे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेवलपिंग हेपेटाइटिस बी। ओके, सो ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, उसके लिए क्या करना जरूरी है? So hepatitis B infection is acute, reduce any sign and symptoms. Okay. और ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, उसके लिए जो क्रोनिक है, मतलब लॉन्ग टर्म्स जो ये बीमारी है, तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस, एंटीवायरल जो मेडिकेशंस हमको डॉक्टर्स देते हैं, जैसे लैमिवुडिन, एडेफोवियर्स, फैमसिक्लोवियर। ओके, दिस आर द एंटीवायरल मेडिसिन। ओके, सो लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कभी कभी, जब लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है 70 to 80%, देन देयर इज़ नीड टू ट्रांसप्लांट द लीवर। ओके, अगेन क्या करना चाहिए हमको? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमको जो वाटर है उसको बॉइल करके ही पीना चाहिए, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, ये ज़रूरी है, हमें हाथ भी क्लीन करते रहना है। ओके, so these are the treatments to cure hepatitis. So this is all about the infectious disease. There are some others infectious disease are there, so let's take in a next period. Okay, so thank you, take care. Okay.